Good morning students, welcome again to your science e-learning classes. Today we will discuss about our last topic, nutrition in ruminants. Beta, what is ruminants? Ruminants are those animals, those herbivorous animals which eat their food. It means, as you know, that the herbivorous animals don't have the food at their place. They have to move from one place to another in search of food, and when they eat food they just want to eat again and as much as they can, and afterwards they move. When they move their places and take rest, they again take out their food from the intestine, from the stomach, and then starts digestion. That's why in ruminants also the process is same. That is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. But in ingestion, let's start from the beginning again. In ingestion, have a shell. The food or the grasses when they keep in their mouth, there is in mouth they have the teeth, tongue, salivary glands, so saliva is taking out. But the teeth of the herbivorous animals have the sharp incisors and large molars, clear, and the powerful jaws. That's why they can easily digest. They can start chewing their food as much as they can, so that the digestion can take place properly. In the ruminants or the herbivorous animals, a cow makes 40,000 to 60,000 jaw movement. बेटा हम लोग तो 2 4 बार 5 बार अपने jaws को move करते हैं once we take the food in, but the cows take 40,000 to 60,000 times to jaws movement per a day. ठीक है, और beside this, food digestion of the food in herbivores takes place in 70 to 100 hours. मतलब 100-70 साल से 70 to 100 hours घंटे चाहिए एक फूड के डाइजेशन को कंप्लीट होने में. In place of us, that we in human beings we have 2 to 24 hours digestion complete. Clear? Now in ingestion I have explained you digestion. In the digestion we have esophagus 3 feet, means हमारी जो होगी हार्डी 20 सेंटीमीटर 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी डाइजेशन के लिए, लेकिन उनकी जो होती है 2 to 3 feet लॉन्ग esophagus होती है, and the esophagus, from the esophagus the food reaches to the stomach. Keep it in mind, in the herbivorous stomach have 4 chambers. Stomachs के herbivorous animal के stomach के 4 chamber होते हैं. First is the rumen, second is the reticulum, third is oomesum, and the fourth one is the abomesum. In the rumen जितना भी कट में जो भी चारा घास फूस वो लोग खा रही है, फर्स्ट टाइम तो जो भी फूड वो खा रहे हैं दे ऑल स्टोर्ड इन द rumen. क्लियर? तो rumen एज ए स्टोरेज प्लेस है, वहाँ पर कट को स्टोर करते हैं. और इन rumen देयर इज अ बिलियन ऑफ बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआस प्रेजेंट होते हैं जो इस कट को, इस अनडाइजेस्टेड फूड को सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, उसको और इजीली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और दूसरा जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी वो च्यू करते हैं उसको सेल्यूलोज में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? नाउ क्योंकि रुमेन के अंदर फूड प्रेजेंट होता है, फिर काउज या जो भी हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वो उन फूड को अपने स्टमक से वापस माउथ में लेकर आते हैं. तो इस तरीके से कट चूइंग ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. एंड देन कम्स टू द रेटिकुलम. रेटिकुलम इज आल्सो द सेम एज द रेटिकुलम मूवमेंट के अंदर क्या होता है, ये जो फूड होता है माउथ में आता है और माउथ से वापस से नीचे जाता है. ठीक है, ओमेसम एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर. जब ओमेसम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Now look at here student, this is the figure of the cow, and the digestive system is explained with the help of this diagram. Here the esophagus, see here 2 to 3 feet long, and after that this is the stomach. It is divided into 4 parts. First is called the rumen. Look at here the rumen. This is the rumen. ये जो big part है यहाँ पर, this is called the storage
प्लेस। यहाँ पे एंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ द स्टोरेज प्लेस होता है। यूमेन से फूड कहाँ पे पहुँचता है, रेटिकुलम में, यानी कि यहाँ से फूड वापस से यहाँ पर आता है जहाँ पे फूड को ये लिखा हुआ है, देखो, मूविंग द स्वैलोड बैक टू द इनटू द माउथ फॉर थोरो च्यूइंग, मतलब वापस से अच्छी तरह से चबाने के लिए ये माउथ में ले जाता है। एंड रेटिकुलम से इट कम्स बैक टू द ओमेसम। ओमेसम के अंदर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, जितना एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एबोमेसम, द वॉल ऑफ द एबोमेसम सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। एबोमेसम का काम होता है जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसको सिक्रीट करते हैं ताकि कर्ड का जो चारा, जो फूड है एनिमल्स का, उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। उसके बाद एज यूजुअल, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बिगिंस इन 4 चैम्बर्स, लंग्स वहाँ से आता है फिर, बट द मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स आर इंटेस्टाइन। स्टमक के 4 चैम्बर्स में ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कार्बोहाइड्रेट से सेलुलोज में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है, लेकिन जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद से एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट है, एक वाटर है, उसको टिश्यूज तक ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन में टिश्यूज तक, सेल्स तक फूड को पहुंचाया जाता है। वहाँ पर फूड को, सिंपलर फूड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद डाइजेशन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड को वापस से एनस और एरेक्टम में स्टोर किया जाता है और एनस के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये डेली प्रोसेस होता रहता है और इसको कंप्लीट डाइजेशन को कंप्लीट होने में लगभग, मैं एज आई टोल्ड यू, 70 to 100 आवर्स लग जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज रीड इट केयरफुली। इफ यू हैव एनी डाउट regarding the explanation part or regarding any, if I left any topic, please ask me. If you are not able to pronounce any word, please ask me clear, and please read 2 to 3 times, watch the video carefully. Thank you.